Hi everyone, I hope you all are doing well. So, today our topic is overthinking. So, what is overthinking? It means thinking too much about the same problem or situation again and again. You keep asking yourself, अरे क्या होगा अगर ये गलत हो गया मुझसे तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा आगे। अगर कुछ गलत भी ना हुआ हो फिर भी हम यही सोचते रहते हैं कि अगर हो गया तो क्या होगा और अगर हो जाता तो क्या होता। सो इट मे फील लाइक यू आर सॉल्विंग समथिंग बट एक्चुअली में क्या है, यू आर मोर कन्फ्यूजिंग योर सेल्फ एंड एज अ रिजल्ट योर माइंड गेट्स टायर्ड which often leads to stress, feeling stuck, or not being able to make decisions. So, today I will be reflecting on what makes you think so, causes of overthinking, what are its consequences, and also the most interesting part is the tips and techniques that will help you to get rid of overthinking. So, without wasting time, let's begin. Overthinking is often seen in people who deal with anxiety, depression, normal sadness, or even low confidence. So, what actually happens? Inside our brain, there's a part called the default mode network. It becomes active when you are resting or just thinking about yourself. Like ऐसा कोई भी टाइम जब हम लोग अकेले रहते हैं या फिर सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब ये जो पार्ट है हमारे ब्रेन में, दैट इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, ये एक्टिव हो जाता है. एंड व्हाट इट डज, लाइक इफ़ यू आर अलोन एंड नॉट फोकस्ड ऑन एनीथिंग, this part may cause your brain to keep replaying past events or future worries, which increases overthinking. So, what is the impact? The first point for impact is कि ये हमारे वर्क और स्टडीज़ को भी बहुत इम्पैक्ट करता है. लाइक ओवर थिंकिंग मेक्स इवन सिंपल टास्क फील बिग एंड स्केरी. You spend more time worrying than doing. This can lead to missed deadlines, poor results, and eventually mental burnout from trying too hard to be perfect. Like for example, आपको एक असाइनमेंट मिला है एंड यू कीप ऑन ओवर थिंकिंग कि अगर मुझसे ये अच्छे से नहीं बना तो, अगर मैं इसको टाइम में सबमिट नहीं कर पाया तो, और क्या होगा ना इसके चलते एट द एंड रिजल्ट यू विल स्टार्ट पैनिकिंग लास्ट मिनट में, और उसके कारण आपका जो वर्क है जो आप सबमिट कर रहे हैं वो लो क्वालिटी का होगा और उसके कारण क्या होगा, आपको हाई स्ट्रेस हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप को भी ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करता है. Overthinking in relationship often means reading too much into someone's words or actions. It creates doubt, fear of rejection, or idea that you are not loved, even when it's not true. So for example, we can tell like that कि आपका एक फ्रेंड है, आपने उसको एक मैसेज किया, एक टेक्स्ट किया उसको, and he is not replying, and suddenly you start thinking कि मैंने क्या कुछ गलत किया है उसके साथ, क्या वो मेरे पे गुस्सा है, why isn't he replying me back, and you start taking tension, you are becoming upset about that. So एक कुछ भी हो सकता है, लाइक वो बिज़ी है या फिर अभी अवेलेबल नहीं है, इट कैन बी लाइक दैट. पर आप के माइंड में ये ओवर थिंकिंग आने लगता है एंड यू कान कंट्रोल दैट. नेक्स्ट इज़ फिज़िकल हेल्थ. सो इट इम्पैक्ट्स लाइक स्लीप इश्यूज, फैटिक,
फिर headaches. When your mind won't rest, your body doesn't rest either. Overthinking can keep you awake at night, make you feel constantly tired, and even lead to physical symptoms like headache or a weak immune system. For example, आप सो तो रहे हैं बेड पे, बट आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ. अब आपको 2 बज गए हैं रात को, बट यू कांट स्टिल स्लीप. तो अब नेक्स्ट डे आपका कैसा होगा? नेक्स्ट डे अगर आप जाओगे, आपका वर्क है या फिर कॉलेज है, स्कूल है, कुछ भी है, नेक्स्ट डे आपको एकदम एग्जॉस्टेड फील होगा. यू विल फील स्लीपी, इरिटेबल, एंड योर बॉडी फील्स हैवी. नेक्स्ट इज डेली फंक्शनिंग. सो यहाँ पे इट इज़ लाइक इनएबिलिटी टू मेक डिसीशंस, constant second guessing. Simple choices like what to wear or what to eat start feeling complicated. You question every little thing, which wastes time and mental energy. For example, अगर आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, किसी ने आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया है, उनके घर पे आज पार्टी है, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं क्या पहनूं, what if I don't fit in, what if people judge me. अगर मैं ये पहनूंगी तो शायद वो लोग मेरे को अच्छे नज़रिए से नहीं देखेंगे, या फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलुक हो जाएगा. सो आपके माइंड में बहुत अलग अलग क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं. सो इन द एंड क्या होता है कि आप वो चीज़ स्किप ही कर देते हो, एंड आप क्या करते हो, आप अपने मतलब जिनको आप बहुत मानते हो कि हाँ वो लोग अच्छा डिसीजन मेक करते हैं या फिर आपका अच्छा चॉइस कर देते हैं, लाइक योर मदर और योर फादर और योर एल्डर सिस्टर, एनीवन इन द हाउस. आप क्या करते हो, उनसे जाके बोलते हो अच्छा पार्टी है, बता दो मैं क्या पहनूँ आज के लिए. सो यू कीप ऑन टेकिंग दिस लिटिल डिसीजंस ऑफ योर ओन लाइफ. सो नेक्स्ट कम्स द टिप that actually work. So first is thought stopping. When you catch yourself ruminating, mentally say stop. Replace it with a more rational thought like this is just a thought, not a fact. अब आप क्या करोगे, आप कहीं पे बैठे हो या फिर लेटे हो, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप खुद को बोलोगे कि स्टॉप, बहुत हो गया, शांत हो जाओ, चुप. ये सिर्फ एक थॉट है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. दिस इज़ नॉट द फैक्ट, दिस इज़ नॉट द रियलिटी. ये थॉट है, ये सबको आते रहते हैं, मुझे भी आते हैं, इट्स ओके. इतना नहीं सोचना है मुझे. दिस वुड बी योर आंसर टू योर सेल्फ. एंड ये आपको बोलते रहना है, 1-2 दिन बोलने से नहीं होगा. दिस यू हैव टू डू कॉन्स्टेंटली. ओके. सो नेक्स्ट कम्स ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस. सो इन दिस एक्सरसाइजेस देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड 5-4-3-2-1 technique. So in this technique we will see you have to tell yourself 5 things you see, 4 things you can touch, 3 things you can hear, 2 things you smell, 1 thing you can taste. What it helps us to calm the racing mind by bringing attention to the present moment. आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे, इधर उधर के बहुत सारे, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट. अब आप क्या कर रहे हैं, मुझे अभी कैसे भी करके इसको चुप कराना है. अब आप खुद को बोल रहे कि चुप हो जाओ, पर फिर भी आए जा रहे, तो यू कान कंट्रोल योर सेल्फ. देन यू कैन ट्राई दिस वन ग्राउंडिंग एक्सरसाइज. what you have to do, you have to tell to yourself only
लाइक 5 थिंग्स यू सी, आपके आसपास में जो 5 चीज़ें आपको दिख रही है एकदम फर्स्ट, तो आप एकदम देखिए और देख के बोलिए हाँ ये मुझे दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, ऐसे करके। देन 4 थिंग जो आप टच कर सकते हैं उसको आप टच कीजिए। देन 3 थिंग्स दैट यू कैन हियर, 2 थिंग्स you smell, and 1 thing you can taste. Next comes schedule worry time. Allocate a fixed 10 to 15 minutes day to worry and write it down. हाँ, ये सुनने में थोड़ा फ़नी लग रहा होगा कि दिन में आप 10 to 15 मिनट्स एलोकेट कीजिए, निकालिए खुद के लिए टाइम कि इस टाइम पे मैं अब वरी करूँगी। अपने पूरे दिन का जो जो है पास्ट फ्यूचर सब कुछ लेके एक बस इस 10 से 15 मिनट में मुझे बैठ जाना है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपको सुबह ऐसे ओवर थिंकिंग आ रहा है, तब आप क्या करोगे? दैट एट दैट टाइम यू मे टेल दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, नॉट नाउ, आई विल वरी एट 6 PM। लाइक इफ़ एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 6 PM का टाइम सेट किया है अपने माइंड पे कि 6 to 6:15 आई विल वरी, कि जितना भी वरी कर, जितना भी सोचना है वो थिंक करना, सब कुछ उसी टाइम पे करना है। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, आपके ब्रेन को कंफ्यूज करना, आपके ब्रेन के साथ खेलना है, क्योंकि अभी तक तो आपके ब्रेन आपके साथ खेल रहा था, है कि नहीं? तो अभी आपको खेलना है आपके ब्रेन के साथ। नेक्स्ट कम्स सेल्फ टॉक प्रैक्टिस। रिप्लेस व्हाट इफ आई फेल विथ इफ आई फेल आई कैन हैंडल इट। नॉट एवरी थॉट डिजर्व्स माई एनर्जी। आपको क्या करना है कि बहुत कोई होता है ऐसा जो बात करने की लोग ढूंढते हैं, उनको लगता है कि आई एम सो लोनली इन दिस वर्ल्ड, कोई नहीं है बात करने के लिए। सो आप सबके लाइफ अलग अलग होते हैं, सबका एक काम होता है। एवरीवन कैन इन्वेस्ट देयर होल टाइम फॉर यू टू लिसन योर टॉक्स। You have to be independent at the end of the day. So the best option is to self talk. ये प्रैक्टिस करो, पहले तो खुद से बात करो, क्यों दूसरों को जाके डिस्टर्ब करना है। नेक्स्ट इज डिजिटल डिटॉक्स, एटलीस्ट 1 hour per day. Overthinking often worsens with scrolling, comparison and constant notification. Take control of your inputs. It clears your mental space. So क्या करना है कि आपको जो स्क्रीन टाइम है, आप मोबाइल देखते रहते हो पूरा दिन, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात करने को नहीं है, चलो मोबाइल देख लेते हैं, थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं। कुछ नहीं होता है उससे, कुछ माइंड डाइवर्ट नहीं होता। जितना आप स्क्रॉल करेंगे, जितना आप मोबाइल को देखेंगे, जितना आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, आपका ओवरथिंक और ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है आप किसी और टॉपिक को लेके ओवरथिंक कर रहे हैं, पर जैसे नोटिफिकेशन आए कुछ और चीज़ को लेके, आप उसको लेके ओवरथिंक करने बैठ गए। सो डिजिटल चीज़ को ज़रा डिटॉक्स कीजिए, कम कीजिए, एटलीस्ट 1 hour per day. नेक्स्ट कम्स टॉक इट आउट। अब ये प्रॉब्लम आता है, लाइक एवरी वन ऑफ अस इज़ नॉट कंफर्टेबल विथ एवरी वन। सो अब बहुत कोई सोचता है कि मेरा प्रॉब्लम यूनिक है, या फिर नो वन कैन अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम बेटर, बिकॉज वट आई एम फीलिंग नो वन कैन एक्सपीरियंस दैट। इफ़ यू शेयर विथ समवन, लाइक विथ योर फ्रेंड और योर फैमिली मेम्बर्स, or even if your therapist, if you are taking any classes or any therapy from a therapist, so what happens कि आपका जो नेगेटिव अंदर जो बन रहा है, आपका जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आप वो थॉट्स वेंट आउट कर रहे हैं। आप अगर खुद में रख देंगे तो वो चीज़ निकल ही नहीं पाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू वेंट आउट योर थॉट्स। एंड अनदर थिंग, अगर आप किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं, यू कैन ऑब्वियसली डू जर्नलिंग।
आप जर्नलिंग कीजिए, आप डायरी में लिखिए अपने थॉट्स को, जो भी कुछ भी थॉट्स आ रहे उसको आप डायरी में लिख लीजिए, बस सिंपल। और फिर डायरी में लिखने के बाद आप उसको पढ़िए, और फिर फ्री टाइम में जो मैंने कहा था कि 6 से 6:15 आप सेट कर लिए 15 मिनट दिन में, तो उस टाइम में पढ़िए, देखिए और सोचिए कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। सेल्फ टॉक कीजिए खुद के साथ, ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्या मेरे पास कोई एविडेंस है, क्या ये सच है, क्या ये फैक्ट है। अगर ये आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, फैक्ट नहीं है, तो बस उस चीज़ को क्रॉस कर दीजिए और इस चीज़ को लेके सोचना बंद कर दीजिए, बस दैट्स इट। Thank you for watching, and please subscribe and hit the bell icon for getting such beautiful videos